تذکرائے روز و شب پر فکر زندگی، فکر زندگی، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری۔ اتوار 15 جون 2025 اور جے کے بینک کے آفیشیل براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا ایک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سب کا اس پروگرام میں استقبال اور ہاردک ابھینندن۔ پروگرام میں شامل رہیں گے کئی سارے موضوعات، لیکن شروعات اداریہ سے۔ دوستو، دنیا بھر میں اپنی مثالی مہمان نوازی کے لیے مشہور خطۂ جموں کشمیر اگلے چند روز کے بعد شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے۔ یاترا کے لیے مختلف انتظامات کی سرکاری سطح پہ سمیکشا ہو رہی ہے اور ایک پرامن، پرجوش اور یادگار یاترا کے لیے رجسٹریشن کا عمل بھی جاری و ساری ہے۔ جموں کشمیر بینک اس یاترا کے مختلف مراحل میں یاتریوں کو سویدھائیں پردان کرنے میں شامل ہوتا ہے، جن میں رجسٹریشن عمل سے لے کر یاترا کے دونوں روٹس پر مختلف بینکنگ خدمات کی دستیابی، پوتر گفا کے پاس مائکرو ATM اور چڑھاوے کے لیے فریش کرنسی، دان کے لیے کنونشنل اور UPI انیبلڈ دان پیٹیوں اور پاس مشینز کا انتظام کر کے بینک اس یاترا کی خوش اسلوبی سے انجام دہی میں ہمیشہ سے مددگار رہا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف جے کے بینک کے دوارا 90 برانچز کے ذریعے ابھی تک لگ بھگ 57,000 سے بھی زائد رجسٹریشنز کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جے کے بینک سری نگر، نیل گراٹ اور پہلگام کے مقامات سے آپریٹ ہونے والے ہیلی پیڈز کا انتظام بھی دیکھتا آیا ہے، جس کی آن لائن ٹکٹنگ پیمنٹس کے لیے جے کے بینک کا گیٹ وے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ یاترا نہ صرف ایک مذہبی سفر ہے بلکہ یہاں کی اعلیٰ روایات کا بھی پرتیک ہے۔ مذہبی رواداری، اخوت اور خدمت کے جذبے سے لبریز یہ یاترا ہر آنے والے یاتری کو ہر ممکن سویدھا دینے کے ساتھ ساتھ ان کی یاترا کو سکھد، سرل اور یادگار بنانے میں کوشاں ہے۔ یہ یاترا ہر سال ہمارے اس سنکلپ کو دہراتا ہے کہ ہمارے سماج میں نفرت، بھید بھاؤ وغیرہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم پریم، رواداری، مذہبی بھائی چارے اور اپنی اعلیٰ مہمان نوازی کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے یاتریوں کا سواگت کھلے دل، کھلے ذہن اور کھلی باہوں سے کریں گے۔ دوستو، بھارت کو بدلتی دنیا میں ڈیجیٹل کیپٹل کی حیثیت حاصل ہے اور پوری دنیا کی کل UPI ٹرانزیکشنز کا 48% ہمارے ملک میں ہی کیا جاتا ہے اور ہر بدلتے دن کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جموں کشمیر اور لداخ کے اندر چنانچہ JNK بینک کو ایک کلیدی اور قائدانہ حیثیت حاصل ہے۔ UPI ریولیوشن میں بھی بینک نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں QR کوڈز بزنس اسٹیبلشمنٹس پر نصب کر کے اس سمت میں پہلے ہی کافی اقدامات اٹھائے ہیں۔ UPI لین دین کا ایک بڑا ہی مؤثر اور کارآمد طریقہ ہے اور روایتی بینکنگ سے پرے کیش لیس اکانومی کو بڑھاوا دینے میں UPI کا ایک اہم رول ہے۔ UPI کا استعمال آج کل ₹1 کی چھوٹی سے چھوٹی رقم سے شروع ہو کر ہزاروں کی ٹرانزیکشنز کے لیے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے کاروبار کافی آسان بن گیا ہے۔ اسٹریٹ وینڈرز، ریڈی والے، سبزی والے سے لے کر چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس اور یہاں تک کہ آٹو اور بس والے اس کا بہت استعمال کر رہے ہیں اور ان کی سیلز بنا کسی تاخیر و طوالت کے ان کے بینک کھاتے میں فوراً جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ فراڈسٹرز ہمارے اس سہولیت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کا سدباب کرنے کے لیے ساؤنڈ باکس کا استعمال ہو رہا ہے، جس سے بھیجی گئی رقم کی اطلاع فوراً آ جاتی ہے اور دونوں بھیجنے والے اور ریسیو کرنے والے کو تسلی اور اطمینان ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت JNK بینک نے مشن موڈ میں اگلے 30 دنوں میں 30,000 ساؤنڈ باکسز دکانداروں اور بزنس آؤٹ لیٹس پر انسٹال کرنے کے لیے ایک کیمپین لانچ کی ہے، جس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنی نزدیکی JNK بینک برانچ سے رابطہ کیجیے اور اپنے حصے کی مشین اپنے نام کیجیے اور مست ہو کر کاروبار کیجیے۔ آپ کی سیل پروسیڈز ہم آرام سے بنا کسی پریشانی کے آپ کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں گے اور اس طرح کی میسیجز سے ہمارے مارکیٹس میں گونج مچ جائے گی۔ Received 500 rupees on JNK Bank QR. JNK Bank QR پر 100 روپے پراپت ہوئے۔ دوستو، جے کے بینک کو اپنے بہترین انفارمیشن سیکیورٹی پروسیسز کے اعتراف میں پریسٹیجیس
IBA CISO Awards 2025 से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है। इस समिट में बैंक ने साइबर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस चैंपियन अवार्ड, साइबर सिक्योरिटी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंटल रेस्पॉन्स अवार्ड हासिल किया। ये अजीम शान तकरीब मुंबई में गुज़श्ता दिनों मुनक्किद हुई, जहां बैंक के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर हसन कंगवानी ने बैंक की तरफ से ये अवार्ड हासिल किए। इन अवार्ड्स के बारे में बात करते हुए बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता और जनरल मैनेजर्स की मौजूदगी में बैंक की IT टीम को इस शानदार उपलब्धि पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हम डिजिटलाइजेशन के प्रोसेसेस में साइबर सिक्योरिटी को कलीदी हैसियत दे रहे हैं और हमारे काबिल अफसरान इस बात को बखूबी समझते भी हैं और अमलाते भी हैं। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि डेटा सिक्योरिटी और साइबर फ्रेमवर्क को मजीद फ़ाल और मजीद महफूज बनाने के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाया जाए, ताकि JK बैंक के साथ बैंकिंग न सिर्फ मजीद आसान बने बल्कि मजीद महफूज भी साबित हो। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मफाद आमा में जारी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को लॉन्च की गई 888 दिनों की महाधन समृद्धि टर्म डिपॉजिट स्कीम की अपार सफलता और जबरदस्त पब्लिक डिमांड को देखते हुए इस स्कीम की अवधि को 10 जुलाई 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत विड्रॉएबल और नॉन विड्रॉएबल ज़मरों में बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के ऊपर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। और यही नहीं, सीनियर सिटीजन्स को ½ इजाफी, जबकि 80 साल से जायद हमारे बुजुर्ग कस्टमर्स के लिए मजीद 0.25% इजाफी इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लिहाजा मौके और इन इजाफी दिनों का फ़ायदा उठाकर इस स्कीम में इन्वेस्ट करें और अपने पैसे का सही मोल हासिल कीजिए। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने आने वाले कल की खुशियां खरीद ली है। आप क्यों पीछे रहे? आज ही राबिता करें और JK बैंक के साथ ग्रो करें। दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स लद्दाख के इश्तराक से JK बैंक फुटबॉल एकेडमी लद्दाख के उभरते फुटबॉल स्टार्स की खोज के लिए टैलेंट हंट फुटबॉल ट्रायल्स का इनकाद कर रहा है। ये ओपन ट्रायल्स 15 से 17 जून सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपन स्टेडियम सिपितुक लेह में मुनक्कद होंगी। वो ख्वाहिशमंद नौजवान जिनका जन्म 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के बीच हुआ है, इन ट्रायल्स के लिए एलिजिबल होंगे। लिहाजा मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने फुटबॉल टैलेंट को उभारने के लिए इन ट्रायल्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और JK बैंक फुटबॉल एकेडमी का हिस्सा बनिए। दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से फाइनेंशियल फ्रॉड्स में म्यूल अकाउंट्स का बार बार जिक्र आता है। क्या हैं ये म्यूल अकाउंट्स और इनके बारे में हमें क्या मालूम होना चाहिए, जानने के लिए आज हमने दावत दी है बैंक के जनरल मैनेजर बराए KYC AML और ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर पीर मसूद साहब को। सर, JK बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। शुक्रिया। जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं? म्यूल तो एक अंग्रेजी लफ्ज़ है, इसका मतलब है गद्दा। जी। म्यूल अकाउंट ये हो गया कि जिस अकाउंट को गद्दे के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। जी। गद्दा तो लाखों का बोझ डालता है, लेकिन खुद को तो वही थोड़ा बहुत चारा मिलता है। जी। बराबर यही मामला है कुछ अकाउंट्स के साथ, कुछ हमारे कस्टमर्स के साथ, कि कुछ जो समाज दुश्मन अनासिर होते हैं तो लोगों का पैसा चोरी करते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड के ज़रिए करें, चाहे वो और किसी तरीके से करें, या मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करें। वो मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू ये पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे घुमाते हैं कि जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए फिर ढूंढना मुश्किल होता है कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ। और दूसरा ये है कि फिर ये पैसा रिकवर करना भी
बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी का भी अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मेरा अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की लालच में आते हैं, चलो अगर ये लाख रुपए ट्रांसफर करता मुझे भी 2000 मिलेंगे, लालच में आते हैं। कुछ लोगों को ये आप ऑनलाइन कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ जिस तरह से ये बंदे ट्रैप हो जाते हैं और वो अपने अकाउंट की डिटेल इन समाज दुश्मन अनासर के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इनके अकाउंट गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। सर, एक अहम बात जानना चाहेंगे कि अगर किसी शख्स का अकाउंट एज म्यूल यूज हो रहा है, चाहे उसको पता है या नहीं है, कानूनी तौर पे उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, कानूनी तौर पर हर किसी बंदे को एक मुल्क का नागरिक होने के नाते मुल्क के कानून का पालन करना है, जिसमें उसको पूरी तरह से ये समझना है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। अब ये है कि अगर कोई बंदा डिलिबरेटली करता है, उससे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये काम छोड़ दीजिए। और अगर कोई बंदा अब बदकिस्मती से अननोइंगली मुलवस हो चुका है किसी और वजह से, उसको भी इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाना चाहिए और नेशनल लेवल पर एक हेल्पलाइन है 1930, वहाँ रिपोर्ट करना चाहिए कि मेरा अकाउंट इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेहरबानी करके मुझे यहाँ पर मदद कर लीजिए। किस तरह से इन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है और क्या कोई ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहाँ पुलिस कार्रवाई करता है, तो उसके बाद क्या इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी चाराजोई भी होती है? देखिए, चाहे किसी बंदे ने जान करके अपना अकाउंट दिया है या किसी का गलती से हुआ या कोई अंडर प्रेशर आया हुआ है या कोई किसी लालच में आया हुआ है, कानून के सामने तो सारे एक जैसे मुजरिम हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जी। तो इसलिए हर किसी नागरिक से, हर किसी बाशिंदे से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कोई बंदा आपको ये अप्रोच करे कि आप मुझे अपना अकाउंट दे दीजिए, अपना पासवर्ड दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए या और कोई चीज़ चेक मांगते हैं आपसे या विड्रॉवल फॉर्म पे साइन करना मांगते हैं आपसे, तो मेहरबानी करके इन चीज़ों से गुरेज करें। अच्छा सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की फ्रॉड्स रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज की डेट में अगर ज़्यादा देखेंगे जो ये म्यूल अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ये जो कौम दुश्मन अनासर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो UPI, IMPS और MPA जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इस्तेमाल करते हैं। मेरी इस्तदा तमाम लोगों से, तमाम ग्राहकों से यही है, चाहे उनका अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक में है या किसी और बैंक में है, कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपको कभी भी फ़ोन आता है किसी बंदे से कि आपको इतना पैसा मिलेगा या आपको नौकरी दी जाएगी, तो मेहरबानी करके ऐसी कॉल इग्नोर करें, इनको कोई जवाब ना दें और उनके साथ कोई भी क्रेडेंशियल, अपना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कोई भी चीज़ आप उनके साथ शेयर मत कर लीजिए। और अगर किसी वक्त अब आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाता है तो आपको इमीडिएटली अपने ब्रांच में जाना चाहिए, वहाँ पर उनको बोलना चाहिए कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये किसी गलत तरीके से आए हैं, उसको स्टॉप करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए और वो पैसा आपको आगे कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मैंने आपको नेशनल लेवल पे जो हेल्पलाइन है 1930, वहाँ कॉल करना चाहिए कि मेरे अकाउंट में इस तरह पैसा आया हुआ है, ये ज़रा देख लीजिए क्योंकि मैं इसमें मुलवस नहीं हूँ, मेरी कोई लालच नहीं है, ये किसी ने डाला हुआ है इसमें, ताकि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। पीर मसूद साहब, इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, उसके अहम नुकात को आवाम के लिए बिल्कुल आसान जुबान में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि RBI के मौजूदा गवर्नर का क्या नाम है। इस सवाल का सही जवाब है श्री संजय मल्होत्रा। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए जिनमें बेशतर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं कश्मीर डिवीजन से बांडीपोरा के अयाज नजीर भट्ट, जम्मू डिवीजन से सांबा के केशव बड़ियाल और लद्दाख से करगिल तहसरू की नरगिस फातिमा। इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक अगले 30 दिनों में कितने साउंड बॉक्सेस मार्केट में इंस्टॉल करवा रहा है। आपके ऑप्शंस है 10,000, 20,000 या 30,000। आपके जवाबात हमें 21 जून शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल आईडी पर मौसूल होने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122 या लॉग इन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.jkbank.com। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।